Welcome all. Today, I will discuss the topic, the art of negotiation. This whole presentation is divided into 8 parts, starting with learning objectives, followed by learning outcomes, dealing with the conflict. As we discussed in the last lecture, what is conflict, what is dispute. Today, we will learn how to deal with the conflict, about the various styles and techniques that can be used in a negotiation process, and then 7 elements of negotiation. And then the last is alternatives, which talks about Bhatna, Vatna, so on and so forth. And finally, the conclusion. Starting with the learning objectives, the main objective of this whole presentation is to equip the audience with the knowledge and various strategies of negotiation. When we talk about strategies of negotiation, that means the style, the technique, and the type of bargaining to be used in a negotiation. Second is to make the audience identify the difference between various styles of negotiation. So styles includes collaborative style, compromise style, accommodative style, and so on. Third is to make audience analyze the role of different techniques. When you talk about techniques, we have salami technique, fait accompli, uh, there is also apparent withdrawal, and so on. And then the objective is to acquaint the audience with the potential and efficiency of the style of negotiation, which is collaborative style. Right, about collaborative style, it is the most efficient style. And finally, we want that the audience will be able to identify the best alternative to a negotiated agreement in their negotiation. So we'll first try to find out the alternatives, and amongst the alternatives, the best alternative which will be suitable to reach an amicable solution. So at the end of the presentation, the audience would be able to understand the basic concept and strategies of negotiation. About the negotiation, we discussed in the last lecture. Today, we are talking about the strategies of negotiation. Second is about the attitude. The audience would be able to work for amicable solutions through collaborative style. As I told you, it is the very most efficient style of negotiation. So how it has to be used. Third is skill. Identify the use of proper skill, proper style and technique that together forms the strategy of negotiation. And finally, the ethics. When we talk about ethics, both the negotiators who are negotiating shall have this idea that they have to respect each other and they have to negotiate as friends, not as opponents. So, starting with the presentation, the first one is how to deal with the conflict. In the earlier lecture, we discussed what is conflict, what is dispute. We also discussed about the concept of negotiation, and we also read that negotiation is the common thread that is common to mediation or common in mediation, arbitration, conciliation, lok adalat, and every kind of ADR. तो आज हम ये देख रहे हैं कि भाई हम उसको नेगोशिएशन को कैसे करते हैं, how to go for a negotiation. And for that, we need to first understand that what is conflict, as we already discussed what is conflict. So today we will discuss how to deal with the conflict. So a conflict involves people, जो parties होती हैं एक conflict में. The process, आज हम negotiation process की बात कर रहे हैं. Third is the problem. Problem is not the issue, but the reason of the problem. कि कैसे आप उस reason तक पहुंचते हैं. So if we take it as a conflict triangle, it's called the conflict triangle. So we have people, we have process, we have problem. Now we will learn how to deal with the people. हम people से कैसे deal करना है, process को कैसे control करना है, और problem को कैसे solve करना है. So when we talk about dealing with the people, अगर आपको याद होगा तो हमने discuss किया था that every person is having different attitude, different social belonging, different religious belonging, different culture belonging. तो उस वजह से क्या होता है कि आपके opinions भी different होते हैं. No two persons can be on the same page every time. It might be difficult for two persons to be on the same page because of their unlike opinions, cultural or religious backgrounds. तो जब हम people से deal कर रहे हैं, जब हम लोगों से deal कर रहे हैं, जब हम parties से deal कर रहे हैं, we have to see that we have to respect that every person is having an individual personality. The relationship between the persons, the perceptions, emotions
इन सब का ध्यान हमें देना पड़ेगा. What we think may not be the other person thinking the same way. So it's better or it is advisable that we respect each other. अब वो कैसे करेंगे आप? We discussed in the first lecture about the communication. अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छे से बरकरार आप रख सकते हैं अपने कम्युनिकेशन को, तो आपके जो इंटरेक्शन की वजह से जो आपके मुद्दे हैं वो जल्दी सॉल्व होते हैं. So we need to build that proper rapport, and for this rapport building we need to have a proper communication. तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसमें आपको ध्यान देना है कि दूसरा जो इंसान है वो कैसे आपसे बात करेगा, कैसे आपसे इंटरेक्ट करेगा. तो अगर आपने ये सब कर लिया, दैट मीन्स यू आर एबल टू डील विद द people, deal with the parties. Second is dealing with the process. अब जो process है, it also includes structure. जैसे भी अब आप negotiation करेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो दूसरा पार्टी है, क्या वो उस स्ट्रक्चर, उस सिस्टम में, उस प्रोसीजर्स में, क्या वो अपने आप को अडॉप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा. So it is about the adaptability and the adoption of the process which is conducive for both the parties. अगर आप उस प्रोसेस को लेके आते हैं जिसमें दोनों पार्टीज कंफर्टेबल हैं, दोनों अपने बिहेवियर के साथ उस प्रोसेस में काम कर सकते हैं, then it will be an effective negotiation. Because every negotiation, I told you in the last lecture, is a different animal. So it will depend on conflict to conflict, from people to people. So we need to bring such process of negotiation which is conducive and comfortable to both the parties. The third is dealing with the problem. अब यहाँ पे जो problem है, it is referred to the reason for the dispute. अगर आप किसी इंसान से negotiation table में सीधे पूछते हैं कि आपका problem क्या है, he might get offended or she might get offended. आपको क्या करना है? जो problem है उसका रीजन जानना है. पोजीशंस के बारे में ना सोच के आप इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं कि आपको ये क्यों चाहिए. Then the parties will tell about their underlying interest, deeper interest, and then you will be able to solve the problem. So what we have to do in a conflict resolution, like negotiation, we have to support the people, we have to use the body language the person belongs to, we have to admire and respect the body language of the person, we have to control the process. कुछ ऐसा प्रोसेस आपको जो नेगोशिएशन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है. एंड फाइनली दिस ऑल सॉल्व्स द प्रॉब्लम. नाउ हाउ डेट कैन बी डन. अब आपने ये तो बोल दिया, वी नीड टू support the people, we need to control the process, we need to solve the problem, but how? For this we have different negotiation styles and techniques, and in the last lecture we discussed about the types of bargaining. So in a negotiation, in a principled negotiation or in an effective negotiation, हम बात करते हैं स्टाइल्स की कि कौन सा स्टाइल किस नेगोशिएशन के लिए काम आएगा. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टाइल, दैट इज कॉल्ड डिफीट और कॉम्पिटिंग. तो इस वाले स्टाइल में क्या होता है, जो नेगोशिएटर है, ही टेक्स हिमसेल्फ और थिंक्स दैट ही इज इन अ विन लूज कॉम्पिटिशन. वो चाहता है कि जो दूसरा पार्टी है या दूसरा नेगोशिएटर है वो हार जाए किसी भी कीमत में. देयर इज नो वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप. बस वो चाहता है कि मेरा आउटकम मिले और ये दूसरा पार्टी हारे. दैट इज आई विन यू लूज, मैं जीतूंगा और आप हारेंगे. दिस इज कॉल्ड डिफीट. देन वी हैव अकोमोडेटिव. इन दिस यू सेक्रीफाइस द इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ द अदर पार्टी. अब यहाँ पे ठीक उल्टा करते हैं आप डिफीट का. यहाँ बोलते हैं यू विन आई लूज. उसका उसका ये जो रीजन है वो ये है कि आप नहीं चाहते आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कभी टूटे. आप चाहते हैं कि आउटकम कुछ भी रहे लेकिन जो मेरा रिलेशनशिप है इस पार्टी के साथ वो बरकरार रहे. देन वी यूज एकोमोडेट. थर्ड इज विड्रॉल और कॉल्ड एज अवॉइडेंस. यहाँ पे क्या हो रहा है, आप रिलेशंस को भी अवॉइड कर रहे हैं और आप जो आउटकम है उसको भी अवॉइड कर रहे हैं. इट इज बेसिकली अ फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, सरेंडर, रेजिग्नेशन और टेकिंग द what the other party is willing to concede. जो भी दूसरा पार्टी आपको देना चाहता है आप बोलते हैं ठीक है साहब मैं इसको रखता हूँ, बाकी लड़ाई नहीं करते हैं
और इसको खत्म करते हैं. दिस इज कॉल्ड विड्रॉ. देन द स्टाइल इज कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज में क्या करते हैं कि 50% आप रखिए, 50% मैं रखता हूं, आप भी कुछ जीतिए, मैं भी कुछ जीत जाता हूं, आप भी कुछ हारिए, मैं भी कुछ हारता हूं. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज. नाउ हियर यू आर मीटिंग the other party halfway. That means you are splitting the difference. तो आप स्प्लिट कर देते हैं डिफरेंस को. आप बोलते हैं कि भाई ठीक है, हम जो हमारा जो आउटकम है उसको स्प्लिट करके, उसको बाइफरकेट करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. देन इज द लास्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट पोटेंशियल स्टाइल, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव. यहाँ पे आप देखते हैं कॉमन इंटरेस्ट के बारे में. यहाँ आप प्रॉब्लम के अंदर जाते हैं. As I told you in the last class that we were having in the last lecture, that we have to see first are the positions, then are the पहले positions होता है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद डीपर इंटरेस्ट होते हैं. तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं. आपका जो बिहेवियर होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि भाई आप भी कुछ जीतिए, मैं भी कुछ जीतता हूँ. दैट इज कॉल्ड लीड्स टू विन विन सॉल्यूशन. तो आपको जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड जाते हैं आप. दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव स्टाइल. Now we will try to see these all styles through the help of a picture. Now for this picture, first of all, I would like to acknowledge the Delhi High Court Mediation and Conciliation Center, Samadhan. Now these are the styles of negotiation. अगर आप देखेंगे इसमें जो पहला स्टाइल है, that is I win, you lose. This is the style of defeat. कि भाई मुझे किसी भी हालत में जीतना है. If you go to the second, it is I don't care if I win or lose. So this is avoidance, withdrawal. आप अपनी सिचुएशन से विड्रॉ कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि नेगोशिएशन हो, जो है सही है. Then is you win, I lose. Now this style is accommodative. आप दूसरे को accommodate कर रहे हैं कि भाई आप जीत जाइए, मैं हारूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो हमारे बीच में जो रिश्ता है वो कायम रहे. Then fourth one is you win some, I win some. This is compromise. अब यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि ठीक है, आप भी 50% रख लीजिए, मैं ही 50% रख लेता हूँ. Lastly, and the most important and most efficient is you win, I win. Now this is the style that we need to understand how we are going to have this. This is called you win, I win or collaborative style. Not 100%, but it will help the parties to at least have what they wanted to have. So for this we need to understand what is बांटना. हम पढ़ेंगे आगे को. तो बांटना, दोनों पार्टीज के पास एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, दोनों कोशिश करते हैं कि उस बांटना को अचीव कर सकें. सो नाउ दिस वाज अबाउट द स्टाइल्स. नाउ अबाउट द एफिशिएंसी. अगर आप देखिए, दिस एक्स एक्सेस इज अबाउट द सब्सटैंटिव आउटकम, कि आउटकम कैसा रहेगा आपके नेगोशिएशन में. एंड दैट वाई एक्सेस इज शोइंग रिलेशनशिप, कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा नेगोशिएटर्स के बीच में. तो अगर आपका आउटकम के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है और ना ही आपको रिलेशनशिप के बारे में सोचना है, तो आपका स्टाइल होता है अवॉइडेंस, जिसमें आप बोलते हैं मुझे कुछ भी मिल जाए, मैं खुश हूं. दिस इज कॉल्ड अवॉइडेंस. ना आपको रिलेशनशिप से मतलब है, ना आपको आउटकम से मतलब है. अगर आपको आउटकम से बहुत ज्यादा मतलब है लेकिन रिलेशनशिप खत्म भी हो जाए तब भी आपको नेगोशिएट करना है, दैट इज कॉल्ड, या जीतना है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन और डिफीट. तो इसीलिए उसका जो एक्स एक्सिस में कॉम्पिटिशन का है हाईएस्ट है, वाई एक्सिस में 0 है. नाउ इफ यू से कि मुझे भी हाफ दीजिए, आप भी हाफ लीजिए, तो फिर हम पहुंचते हैं कॉम्प्रोमाइज में. तो यहाँ पे जो हमारा एक्स एक्सिस में भी आप हाफ ट्रेवल कर रहे हैं, वाई एक्सिस में भी आप हाफ ट्रेवल कर रहे हैं. एंड देन वी हैव एकोमोडेशन. अब एकोमोडेशन में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप पूरा हाई जा रहा है लेकिन जो आपका आउटकम है वो सबसे नीचे है, लो में है, बिकॉज वहां पे आपने क्या करा, ध्यान दिया है रिलेशनशिप को. So this is called accommodation. And now if you see the collaboration में दोनों highest है. Even maintaining relationship is also highest. Substantive outcome is also highest. So we need to attain this collaboration style in our negotiation strategy. What will happen if you are able to have this style? जो हमारा negotiation होगा बहुत efficient होगा.
इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड इन टर्म्स ऑफ आउटकम, दोनों ही हमें हाईएस्ट मिलेंगे. नाउ हाउ टू यूज these styles. So we have now different techniques. These are called negotiation techniques. तो पहला आता है आपका सलामी. Salami is a negotiation technique where you achieve an objective a little bit at a time rather than in one giant step. जैसे, for example, there is a person and who is one negotiator and the second negotiator is an old man. अब यहाँ पे जो मुद्दा है, जो नेगोशिएटर वन है, वो चाहता है जो दूसरा नेगोशिएटर है उसकी प्रॉपर्टी लेना. फॉर द फर्स्ट नेगोशिएटर, what matters is the property. For the second negotiator, who is an old man, is what matters is the sentiment or the emotion which is connected to that property. तो जो पहला नेगोशिएटर है वो क्या करता है, वो एक साथ 5 एकड़, फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी इज अराउंड 5 एकर्स, तो 5 एकड़ एक साथ नहीं मांग के वो क्या बोलता है कि एक काम करिए, अभी आप मुझे घर बनाना है अपना, 2 एकड़ आप मुझे बेच दीजिए, कुछ टाइम बाद आप मुझे बाकी प्रॉपर्टी बेच दीजिएगा. नाउ व्हाट विल हैपन, ना ओल्ड मैन विल से दैट ओके ठीक है, मुझे पैसा भी चाहिए और इमोशंस भी है, तो एक काम करिए, आप 2 एकड़ अभी रखिए, फिर देखेंगे. नाउ आफ्टर 1 ईयर द फर्स्ट नेगोशिएटर कैन अगेन आस्क कि भाई 1 साल हो गया है, अब थोड़ा सा मुझे अपना घर के बाहर पार्किंग भी चाहिए, तो क्या मुझे आप 1 एकड़ और बेचेंगे. नाउ इट विल डिपेंड अगेन ऑन दी ओल्ड मैन, दैट अगर उसे लगता है दैट यस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, तो ये कर सकता है कि 1 एकड़ दे देगा, 2 एकड़ अपने पास और रख लेगा. देन द नेक्स्ट ईयर अगेन द फर्स्ट नेगोशिएटर कैन आस्क फॉर मोर 1 एकड़. अब वो बोल सकता है कि मेरे बच्चे भी हैं, उन्हें खेलना है, तो मुझे कुछ पार्क डेवलप करना है. सो अगेन दैट ओल्ड नेगोशिएटर विल अगेन सेल 1 एकड़. सो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप. आप एक साथ पूरा 5 एकड़ नहीं ले रहे हैं, आप स्टेप्स में एक एक एकड़ ले रहे हैं. दिस इज कॉल्ड सलामी. इट इज बिल्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, बिकॉज जितना वो आसपास रहेंगे उतना अच्छा उनका रिलेशन हो जाएगा, एंड इट विल इजी फॉर द पार्टीज टू नेगोशिएट. दिस इज कॉल्ड सलाम. नाउ सेकंड टेक्निक इज फेट अकम्पली. इसका मतलब होता है यू नीड टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव एट एनी कॉस्ट. यहाँ पे आपके रिलेशनशिप मायने रखते भी हैं कभी, और कभी उन रिश्तों के बारे में आप नहीं सोचते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if I happen to take a class, an extra class, अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, and if I am asking the students कि आपको कब फ्री है, मैं तब आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, it might be possible कि भाई students are reluctant, वो नहीं चाहते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास होना. But if I say that my extra class will happen on Tuesday at 3 p.m. Now they do not have any option. कुछ लोग अटेंड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट मेरा ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो चुका है. I wanted to have an extra class and I'm having it. तो यहाँ पे मैं रिलेशंस के बारे में बात नहीं करता हूँ, दूसरे पार्टी के इंटरेस्ट के बारे में नहीं बात करता हूँ, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए. दिस इज कॉल्ड फेट अकम्पली. देन वी हैव स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टेक्निक. यहाँ पे क्या होता है कि आप नेगोशिएट करते हैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का हवाला देके. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ प्लम्बर, एक प्लम्बर है आपके पास, काम करने आता है, आप उससे बोलते हैं कि अभी एक काम करिए, ये जो पहले पूरा काम कर लीजिए, उसके बाद पैसा ले लीजिएगा. नाउ दैट प्लम्बर नेगोशिएट्स, वो बोलता है कि साहब ऐसे नहीं चलता है, जब भी आपको मुझे कुछ काम देना है तो पहले आपको मुझे 20% देना पड़ेगा, उसके बाद 50% जो पैसा बचता है वो आपको मुझे आधा काम खत्म होने के बाद देना पड़ेगा, और उसके बाद लास्टली जब पूरा काम खत्म हो जाएगा तब आप मुझे 30% देंगे. तो पहले 20%, फिर 50%, फिर 30%, और यही हर जगह फॉलो होता है, आप कहीं भी पूछ लीजिए. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग by the help of standard practices which are followed across or around you. तो जो आपके आसपास के लोग जो फॉलो करते हैं, आप उनको लेके चलते हैं. द फोर्थ टेक्निक इज डेडलाइन. अब डेडलाइन में क्या होता है, इट इज कनेक्टेड टू द टाइम. आपको पता है भी, मुझे भी वक्त की जरूरत है, आपको भी, आपके लिए भी वक्त इंपॉर्टेंट है. तो अब क्या करते हैं कि अगर आपने 2 दिन के अंदर मेरी डिलीवरी नहीं करी, कुछ सामान आपने लिया है, तो मैं आपसे सामान नहीं लूंगा. तो आप मुझे बताइए, अगर आप डिलीवरी कर सकते हैं 2 दिन के अंदर, तो मैं आपसे सामान लूंगा. Now this is the way, this is when we require something very urgently.
आपको कोई प्रोग्राम कराना है। अब आपका प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल 21 ऑफ अगस्त को होता है, को होना है, एंड टुडे इज 18। तो आप क्या कैसे नेगोशिएट करेंगे? यू विल से दैट माय फंक्शन हैज टू हैपन ऑन 21 ऑफ अगस्त, सो देयरफॉर आई नीड दीज थिंग्स टू बी on 20th of August. So this is called deadline. So use of deadline technique is required when you are time bound. Then we have fainting. Fainting में क्या होता है? It is about when one thing is desired, but the primary objective is really something else. For example, एक कंपनी में एक बॉस और एक एम्प्लॉय है। जो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस से बोलता है कि सर आप मेरा प्रमोशन करवा दीजिए, ठीक है। अब जो बॉस है उसे लगता है कि प्रमोशन तो अभी नहीं हो सकता, बिकॉज प्रमोशन के लिए बहुत लोग खड़े हैं, 4 लोग 5 लोग पहले से लाइन में हैं। तो बॉस क्या करता है, उसको बोलता भी आप एक काम करिए, 2 साल के लिए मैं आपको प्रमोट तो नहीं कर सकता, लेकिन आपकी सैलरी बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एम्प्लॉय था ही वॉन्टेड टू हैव एन इंक्रीज इन हिज सैलरी, बट उसने प्रमोशन को आगे रखा। वो सैलरी ही में ही इंक्रीमेंट चाहता था, लेकिन उसने ऐसा दिखाया अपने बॉस को कि भाई उसे प्रमोशन चाहिए। And boss was well aware of the fact, even the employer was well aware of the fact that there are 4 or 5 employees who are waiting for their promotion. So it's better to increase his salary rather giving him a promotion. इसे एक बोलते हैं fainting. Now we have apparent withdrawal. Now when we talk about apparent withdrawal, it is withdrawing or showing some deception as well as deferring when the other negotiator is hard to negotiate. फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा दिखाते हैं यहाँ पे जैसे कि आपने तो अब ये नेगोशिएशन छोड़ दिया है और आप कहीं और जा रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल रिक्शे में आप बैठना चाहते हैं, अब ऑटो रिक्शा वाला आपसे बोलता है कि मैं आपसे 100 रुपये लूंगा, वहां पे 2 या 3 ऑटो वाले हैं। अब आप उनको बोलते हैं आप एक काम करिए, मुझे 80 रुपये में ले जाइए। तो रिक्शा वाला बोलता है नहीं साहब, 80 रुपये में नहीं हो सकता, 100 ही लूंगा मैं। तो आप क्या दिखाते हैं उनको कि ठीक है साहब, अपने पास आप, भैया आप अपने पास रहिए, मैं दूसरा ऑटो पकड़ता हूँ। आपके दिमाग में एक क्लियर है कि आपको उसी ऑटो से लेना जाना है, लेकिन बस आप उसको दिखाने के लिए दूसरे ऑटो की तरफ जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो ऑटो वाला है आपको बुलाएगा, बोलेगा साहब आप एक काम करिए, 80 रुपये में बैठ जाइए। दिस इज कॉल्ड apparent withdrawal, when you are withdrawing from the position but apparently। आप बस दिखा रहे हैं कि आपने विड्रॉ कर दिया है नेगोशिएशन से, बट आपने विड्रॉ नहीं किया होता है। Another approach or technique is good boy, bad boy technique. Now, in this negotiation, there is a requirement of 2 negotiators on one side. जैसे अभी तक तो हम क्या देख रहे थे, एक नेगोशिएटर इस साइड था, दूसरा नेगोशिएटर अपोजिट साइड में था। यहाँ पे 2 नेगोशिएटर एक साइड में है और एक नेगोशिएटर दूसरी साइड में है। अब मान लीजिए आप कुछ सामान लेने गए हैं कहीं, आपका दोस्त है विच इज हैविंग अ हार्ड लाइफ अप्रोच, वो गुस्से में रहता है, उसे कुछ पसंद आया और वो बोलता है शॉपकीपर से, आपने अगर मुझे ये इतने पैसे में नहीं दिया तो मैं आपकी दुकान में नुकसान कर दूंगा। अब आप बीच में आते हैं, आप बोलते हैं कि सर क्या हो गया है, अच्छा आपको इतने का देना है, आप एक काम करिए इतने का दे दीजिए, मेरा दोस्त बहुत गुस्से में रहता है, तो मैं नहीं चाहता ये हमारी बात आगे बढ़े, हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। सो what is happening here, one friend who is friendly and easy to deal with, he steps in that negotiation, and the other friend who is हैविंग अ हार्ड लाइफ अप्रोच, उसको वो बाहर जाता है। तो एक अंदर आता है नेगोशिएशन करने, जो दूसरा था जो हार्ड लाइफ अप्रोच था वो बाहर चले जाता है। दिस इज कॉल्ड गुड बॉय बैड बॉय टेक्निक। द लास्ट इज लिमिटेड अथॉरिटी। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास नेगोशिएशन करने के लिए हमें पता है कि वी डू नॉट हैव अथॉरिटी टू ऑथराइज और डायरेक्ट समथिंग और समवन। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बॉयज हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल में एक लड़का बोलता है अपने हॉस्टल अटेंडेंट को कि मुझे आज रात को 10 बजे बाहर जाना है, तो प्लीज क्या आप परमिशन देंगे? तो जो हॉस्टल अटेंडेंट है वो नेगोशिएट करने के लिए क्या बोलता है, वो कहता है सर ये मैं नहीं दे सकता परमिशन, इसके लिए आपको
रेजिडेंशियल वार्डन के पास जाना पड़ेगा। तो दिस इज द यूज ऑफ लिमिटेड अथॉरिटी व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग बाय यूजिंग द लिमिटेड अथॉरिटी विच इज गिवन टू यू। आप बोलते भी इससे ऊपर अगर आपको कुछ नेगोशिएट करना है तो उसके लिए आप मेरे बॉस से पूछिए, आप मेरे सीनियर को पूछिए। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड अथॉरिटी टेक्निक। Now, when we are done with this styles of negotiation and techniques of negotiation, अब हम देखते हैं कि हमें जो negotiation करना है उसमें क्या क्या elements crucial है। The first one is communication. आपको मैंने बताया भी था, when the communication is single way or one way communication and there is no feedback, the other party will not be able to build a good rapport. And rapport building is the most important element of negotiation. अगर आपका communication सिर्फ one way है और feedback नहीं है उसमें, अगर आप listening नहीं proper कर रहे हैं, अगर आप proper उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपका negotiation खत्म हो जाएगा. So it has to be there has to be a proper effective two-way communication. Second is you need to focus on interests. हमने देखा था जब पार्टीज आपस में आती हैं, जब दो पार्टी आती हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट पोजीशंस। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, वी गो डाउन, हम पूछते हैं उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके डीपर इंटरेस्ट क्या है, उनके नीड्स क्या है, उनके डिजायर्स क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वी नीड टू डील ऑन इंटरेस्ट, नॉट ऑन पोजीशंस। अब एक बार आपका कम्युनिकेशन हो गया है, आपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर ली है, नाउ द थर्ड स्टेप इज टू फाइंड आउट ऑप्शंस। अब आप ऑप्शंस ढूंढेंगे, इज अ फुल रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। देन वी हैव ऑल्टरनेटिव्स। इन ऑल्टरनेटिव्स, अब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में क्या फर्क है, ऑप्शन इज द वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस। जैसे आपके पास आपको कल कहीं जाना है, अब आप देखेंगे भी कल का ट्रेन कौन सा है। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ फ्रॉम असम टू दिल्ली आपको जाना है और असम से 5 फ्लाइट्स हैं, ठीक है। अब 5 फ्लाइट्स का टाइमिंग अलग अलग होगा, बट ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। ऑल्टरनेटिव्स में क्या होगा, अब आप ये देखेंगे, आप इवेलुएट करेंगे कि भाई जो टाइमिंग, जो फ्लाइट शाम को जा रही है उस वक्त आप फ्री हैं, तो उन्हीं फ्लाइट्स को आप ले सकते हैं। तो पहले ऑप्शंस में 5 फ्लाइट्स थी, अब ऑल्टरनेटिव्स में आपने 2 फ्लाइट रख दी है जो रात को जा रही है। अब आप देखेंगे कि भाई कौन सा ज्यादा सुटेबल टाइम है, तो वो आपका बन जाता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि भाई ये लास्ट वाली जो फ्लाइट है जो रात को 11 बजे जा रही है, ये मेरे लिए बेस्ट। So need to find out first options, then alternatives, and then best alternative. तो इसे हम बोलते हैं बांटना, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन नेगोशिएशन इज लेजिटिमेसी। जब भी आप नेगोशिएशन के लिए बैठते हैं, देयर हैज टू बी इक्वल ट्रीटमेंट, बोथ द पार्टीज आर ऑन इक्वल फुटिंग, देन ओनली यू कैन हैव अ प्रॉपर नेगोशिएशन। और उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन किया जाए थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ रैपो बिल्डिंग। आपको बार बार रैपो बिल्ड करना है, from the initial stage of introduction to the final stage of closing. There has to be a proper rapport building in a negotiation. And finally, you need to have some commitments. आपके कुछ ground rules होंगे कि भाई हम इसकी बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इस मुद्दे के लिए बैठे हैं, तो हम सिर्फ इस मुद्दे की बात करेंगे। So if you are having these 7 elements, then you can have an effective negotiation, which is called principled negotiation. तो ये जरूरी है कि आप लोग इन सारे एलिमेंट्स को ध्यान रखें। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल्टरनेटिव्स, तो आपको ने बताया था बांटना क्या होता है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। उसके बाद होता है आपका मलाटना और इयटना, दैट इज कॉल्ड मोस्ट लाइकली ऑल्टरनेटिव और एस्टिमेटेड ऑल्टरनेटिव। देन कम्स बॉटम लाइन, उसके बाद है वाटना, दैट इज कॉल्ड वर्स्ट ऑल्टरनेटिव। एंड फाइनली वी हैव जोन ऑफ पॉसिबल अग्रीमेंट, जोपा। अब इनका क्या काम है, अभी आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको समझ में आ चुका है। अब अगर 2 पार्टीज हैं, एक बायर है एक सेलर है, जो बायर है वो चाहेगा कि भाई मैं सस्ते में कोई सामान खरीदूं, जो सेलर है वो ये चाहेगा कि मैं महंगे में अपना कोई सामान बेचूं। तो फॉर एग्जांपल, कुछ बायर को कुछ खरीदना है और वो उसके पास जो कमोडिटी खरीदना चाहता है उसके लिए वो 700 रुपये उसके लिए बेस्ट लगता है। सो ही वॉन्ट्स टू ओनली स्पेंड 700 रुपीज फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी।
At the same time, the seller has to sell his commodity at rupees 1000. अब एक को 1000 रुपए चाहिए, दूसरे को 700 रुपए चाहिए, ये इनका बांटना है. We need to have our बांटना before sitting for a negotiation. नेगोशिएशन से बैठने से पहले आप सबके पास अपने अपने बांटना होने चाहिए. अब दोनों पार्टीज को अपना बांटना पता है. जब बांटना की बात करते हैं एंड नेगोशिएशन की बात करते हैं, आपको पता है कि कुछ नेगोशिएट करके आप नीचे ऊपर आएंगे. तो फॉर एग्जाम्पल जो बायर है उसने बोला कि 700 मेरा बांटना है, अगर उससे ऊपर जाना पड़ा तो मैं 800 रुपए दे दूंगा. दिस इज कॉल्ड इयटना, एस्टिमेटेड. उसने लगा कि 800 रुपए में दे सकता हूँ. अब 800 से अगर ऊपर जाना पड़ा तो उसने सोचा है कि भाई मैं 850 दूंगा, दैट इज माई बॉटम लाइन. 850 से ऊपर अगर मैं चले गया, अगर मैं 900 में जाता हूँ, तो दैट विल बी माई बांटना, दैट इज वर्स्ट ऑल्टरनेटिव, जिसके लिए वो रेडी नहीं है. ऐसे ही सेलर के पास है कि वो बोलता है कि 700 रुपए में मैं 1000 रुपए में मैं इसको बेचूंगा. अगर 1000 नहीं मिलेंगे तो 900 मेरा इयटना है, एस्टिमेटेड है. उससे नीचे मैं 800 में आऊंगा, दैट इज माई बॉटम लाइन. उससे नीचे अगर मैं बेच दिया तो मेरा वाटना बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड वर्स्ट ऑल्टरनेटिव. तो ये आपके पास क्या है, अपने अपने स्टेप्स आप ध्यान रखते हैं कि भाई पहला स्टेप है मेरा बांटना, दूसरा स्टेप है मेरा इयटना, तीसरा अगर चले गया तो बॉटम लाइन, और बॉटम लाइन अगर क्रॉस कर लिया तो मेरा बनेगा वाटना. सो वाटना में पहुंचने का मतलब है कि आपने जो नेगोशिएशन किया है वो आपने लूज कर लिया. इट्स बेटर टू हैव बांटना, बट इट इज अगेन इम्पॉसिबल टू हैव बांटना. तो आप क्या करते हैं, आप जो बांटना एक बायर का है, जो बांटना एक सेलर का है, उसके बीच के गैप को कम करते हैं. दैट इज कॉल्ड जोपा. तो अगर दो बांटना के बीच में अगर आप देखें, दिस इज बायर्स बांटना, दिस इज सेलर्स बांटना, तो इस स्पेस को हम बोलते हैं जोपा. वी ट्राई टू डिक्रीज दिस जोपा, दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ पॉसिबल अग्रीमेंट. जितना डिक्रीज होगा उतना दोनों का बांटना अचीव हो पाएगा. एंड दिस इज द मेन पर्पस ऑफ नेगोशिएशन. So these are about alternatives. Now I would like to conclude this whole lecture. So first thing is you need to expect the unexpected. सारे negotiation different होंगे, लोग different होंगे, और आपका process भी different होगा. So support the problem, separate people from the problem. पहले support करना है लोगों को, उनको problem से दूर रखना है, rapport build करना है. Control the process. आपको अपना पूरा process control करना है, proper effective communication होना है. फोकस करेंगे इंटरेस्ट में और फिर विन विन सॉल्यूशन में. प्रिपेयर वेल बिफोर नेगोशिएशन. तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टाइल आपको यूज करना है, कौन सा टेक्निक यूज करना है, कौन सा बार्गेनिंग यूज करना है. एंड ऑल्सो यू हैव टू नो योर पार्टनर. सो इफ यू नो द पार्टनर ऑफ योर्स, आपके लिए इजी रहेगा नेगोशिएट करना, अपने सॉल्यूशन तक पहुंचना. सो वर्क फॉर एमिकेबल सॉल्यूशंस थ्रू कोलैबोरेटिव स्टाइल ऑफ नेगोशिएशन. अगर आप कोलैबोरेटिव यूज करेंगे, the other negotiator will also have a good rapport with you, and he will also try to look for a collaborative solution. And finally, negotiate as partners and not as opponents. So with this, I end this lecture. Thank you everyone for listening patiently to this lecture. I hope this was now everyone is having a good understanding of what is negotiation and how to go for a negotiation. Thank you everyone.